We at the Department of Computer Science have been organizing various conferences, webinars, and workshops to provide updated knowledge on the various aspects of teaching learning technologies, and this time come up with this 2-day online workshop for all the teachers, students, mentors, in short, for each and every individual who is a business person, professional, or using any of the social media platform. This workshop is an effort to help teachers with better presentation and graphics in their lectures, and students to acquire a skill that can make them earn while they learn. And it's very rightly said. If we ask anyone, whether a teacher, student, or businesswoman or a housewife, to put technology away, it's like asking a doctor to save a life with one hand tied behind his back. So this workshop will help you to learn the graphic designing, to equip you with the ICT tools, and will also strive to inculcate skills and proficiency essential for an effective classroom teaching as well as day-to-day digital and technical. Now it's time to introduce my dear colleague, Professor Devki. With a teaching experience of 6 years, she is presently working as assistant professor in PG Department of Computer Science. Being a meritorious child since her childhood, she has always been among the toppers during her school days and her university days, and she has cleared UGC JRF in computer science. Professor Devki have a good exposure of industrial working, is specialized in various programming language like C, C++, Java, data structures, and web programming. She has a notable number of research papers published in national and international journals, and always striving for making herself upgraded and updated. She has done MOOC courses, and among them, the notable one is Learn Moodle 3.8 Basic, which was organized by Moodle headquarters. And also she has attended many FDPs, workshops, conferences, webinars, etc. Professor Devki is actively involved in designing certificates, brochures, and cards for the college. And today she will be introducing you to a very interesting tool for designing, that is Canva. And now it's time over to Professor Devki. It's all yours, ma'am. Hello, am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Good morning, everyone. I, Devki, feel highly privileged and delighted for being here and introduce you all a very interesting tool, adapting and convenient way of designing. Yes, I'm talking about a graphic designing tool that is very easy to use and helps in creating amazing designs quickly. The tool is Canva. Now let's start. मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, ma'am, it's visible. Okay. सबसे पहले मैं इसको स्टार्टिंग से स्क्रीन कैनवा जो टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है। किसी भी तरह का ग्राफिक, किसी भी डायमेंशंस का अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैनवा टूल से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी सिस्टम पे, क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, मींस हम इस कैनवा को किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हमें एक इंटरनेट कनेक्शन और एक ब्राउजर की फैसिलिटी की जरूरत है और उसके थ्रू हम उस कैनवा को यूज कर सकते हैं। और जितने भी डिजाइन हम अपने कैनवा में हमने बनाए हैं उनको हम डायरेक्टली जिस भी सिस्टम पे हम कैनवा के थ्रू लॉगिन करेंगे वहां पे अपने सारे के सारे डिजाइन को हम देख सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक सिस्टम पे बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली उसी सिस्टम पे ही वो डिजाइन रहेंगे। हम मल्टीपल सिस्टम्स पे, सब सिस्टम्स पे, किसी भी सिस्टम पे कहीं पे भी रिमोटली उन डिजाइन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक ब्राउजर है, उसके थ्रू मैंने सिंपली क्या करना है, canva.com करना है। एड्रेस बार में canva.com, ठीक है। आपका ये फर्स्ट पेज आ जाएगा जहां पे अगर आप फर्स्ट यूजर हो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट यू हैव टू साइन अप। इफ यू आर अ फर्स्ट यूजर देन साइन अप करोगे आप, और साइन अप के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक। अगर आपके पास गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट है तो आप उनके थ्रू साइन अप कर सकते हो, ठीक है। या फिर यू कैन क्रिएट योर
your own different account, sign up with email, then you will create your new different account in for Canva. ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. मैंने अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ही कैनवा में कनेक्ट किया हुआ है, एक स्पेशल डिफरेंट अकाउंट नहीं जनरेट किया है. ठीक है, देन उसके लिए आप साइन अप कर लोगे फर्स्ट टाइम. उसके बाद में आपको सिंपली लॉग इन करना है. साइन अप करने के बाद में लॉग इन विथ गूगल अकाउंट. ठीक है, as my email id was already opened, so it has opened my Canva account already. Otherwise it will ask you your Gmail id and password for Gmail. ठीक है, क्योंकि मेरी Gmail id यहाँ पे ऑलरेडी ओपन थी. ठीक है, इसीलिए उसने डायरेक्टली मुझे Canva में लॉग इन कर दिया है. देन अब यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पेज है Canva का, जहाँ पे आपने जितने भी डिजाइन आप तैयार करना चाहते हो वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स अवेलेबल है. होम टैब, टेम्पलेट्स, features, learn and pricing. Then for each tab we have different options available. ठीक है, होम टैब पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी यू आर ऑन अ होम पेज ऑफ कैनवा. इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिकमेंडेड फॉर यू, कि कौन कौन से डिजाइन्स कैनवा हमें रिकमेंड करता है, वो सारे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, फॉर यू यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल डिजाइन हैं जो हम कैनवा में हमें बिल्ट इन ही मिलते हैं. ठीक है, एक चीज और, कैनवा में 2 टाइप के वर्जन होते हैं. एक तो फ्री वर्जन है कैनवा का और एक है पेड वर्जन. हम ऑलरेडी फ्री वर्जन से बहुत अच्छे डिजाइन तैयार कर सकते हैं, इसीलिए पेड वर्जन की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. ठीक है, तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्री, जिसमें हमें फ्रीली अवेलेबल जो वर्जन अवेलेबल है, एंड प्रो वर्जन में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं कैनवा के अंदर, तब जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है. एंड दीज आर ऑल फ्री वर्जन्स, एंटरप्राइज, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट. ठीक है, ऑल योर डिजाइन्स, जितने भी डिजाइन्स मैंने तैयार किए हैं वो सारे मेरे इस ऑप्शन के अंडर आ जाएंगे. ठीक है, रिसेंट डिजाइन, मोस्ट रिसेंट डिजाइन्स मैंने कौन कौन से यूज किए हैं वो सारे के सारे मेरे मोस्ट रिसेंट डिजाइन्स आ जाएंगे अवेलेबल. ठीक है, इन डिजाइन्स को व्यू करने का भी डिफरेंट वे है. आप कौन सा, व्यू एज अ ग्रिड, इसमें मुझे व्यू कर रहा है इस पे में. अगर लिस्ट व्यू करोगे तो इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में आपके डिजाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, ये सब जगह सब में ही ऑप्शंस अवेलेबल. शेयर्ड विद यू, यहाँ पे एक और फैसिलिटी बहुत अच्छी कैनवा में अवेलेबल है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन को शेयर कर सकते हैं किसी और पर्सन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डिजाइन अपना तैयार किया है, मैं चाहती हूँ कि उसकी एडिटिंग कोई और पर्सन कर सके साथ में. ठीक है, तो हम ईमेल आईडीज के थ्रू टीम्स क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए हमें सिंपली ईमेल आईडीज चाहिए, उसके थ्रू हम टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और उन डिजाइन्स को दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं. जैसे एक डिजाइन मैंने तैयार किया, मैं अपने कलीग के साथ या किसी फ्रेंड के साथ उस डिजाइन को शेयर कर सकती हूँ. और शेयर करने के भी डिफरेंट वेज हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं हम, और ईमेल आईडीज के थ्रू भी उस पर्सन को टीम्स बना करके शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और जो डिजाइन मेरे साथ शेयर हुए हैं, जैसे ये डिजाइन मैंने गुरप्रीत मैम के साथ शेयर किया है, उन्होंने एडिटिंग करी थी, मैंने भी एडिटिंग करी है. ये आशा मैम के साथ मैंने शेयर किया. ये सारे डिजाइन किसी और ने स्टार्टिंग पे बनाए थे और हमने शेयर करके आपस में इनमें काम किया है डिजाइन. ठीक है, देन ब्रांड किट की फैसिलिटी. ब्रांड किट का फीचर कैनवा प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है. सिंपली इसमें होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगोस को हम जो अपने रिसेंटली बार बार यूज करते हैं वो लोगोस, उनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. प्रॉपर एक किट बन जाती है जो हमारे अपने डिजाइन की है, जिनको हम फर्दर वी कैन यूज इन आवर ओन डिजाइन्स. ठीक है, देन ब्रांड कलर्स, दीज आर कलर पैलेट्स, जी मतलब मोस्ट रिसेंट कलर्स दैट आई नीड वी कैन यूज हियर. ठीक है, अब जो फ्री वर्जन है उसमें हम सिर्फ एक ही कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं. अगर आप कैनवा प्रो यूज करोगे तो डिफरेंट वर्जन्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन ब्रांड फॉन्ट्स में हमारे पास क्या अवेलेबल है कि डिफरेंट फॉन्ट्स हमारे पास कैनवा जो फ्री वर्जन है उसमें ये 3 टाइप के फॉन्ट्स अवेलेबल करवाता है. हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए और बॉडी स्टाइल्स के लिए. और आपको कुछ नया ही डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट चाहिए जो कैनवा में भी अवेलेबल नहीं है, उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करके यूज कर सकते हो कि स्पेशल टाइप का ही फॉन्ट मुझे चाहिए. ठीक है, तो वो सारे फीचर्स किसमें, कैनवा प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे. जैसे मैंने ये कलर पैलेट, सिंगल कलर पैलेट मैं अपनी फ्री वर्जन में क्रिएट कर सकती हूँ, बट प्रो वर्जन में अगर मुझे और भी इसमें कलर ऐड करने हैं तो मुझे
मुझे प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, देन ये मेरी ब्रांड किट की फैसिलिटी है जिसमें लोगोस, कलर्स और फॉन्ट्स बिल्ट इन मुझे अपने एक डिजाइन में, जिनको मुझे रिसेंट डिजाइन में बार बार रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन ऑल योर फोल्डर्स, जितने भी फोल्डर्स मेरे पास कैनवा में अवेलेबल हैं वो सारे फोल्डर्स, और जो फ्री वर्जन है कैनवा का, उनमें हम सिर्फ मैक्सिमम 2 फोल्डर्स फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू बाय द कैनवा प्रो। ठीक है, बट इनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें पड़ती नहीं है, हम इनके बिना भी अपनी जो फीचर्स प्रो में है उसके बिना भी बहुत अच्छे डिजाइन फ्रीली वर्जन में अवेलेबल हैं, और उनको हम यूज करके अपने अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल योर डिजाइन, दिस फोल्डर इज एग्जैक्टली सेम एज ऑल योर डिजाइन, एंड लाइक्स, जो फाइल्स और फोल्डर्स जो डिजाइन मैंने लाइक किए हैं वो मेरे लाइक्स फोल्डर में आएंगे। और कुछ अगर परचेज करते हैं, ठीक है, कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल हैं, और कुछ हमें परचेज करने पड़ते हैं, जो आप परचेज करोगे वो परचेज फोल्डर में आएंगे। अपलोड्स फोल्डर का मतलब है कि कुछ जैसे इमेजेस हैं जो मुझे अपनी इमेजेस कुछ रिक्वायर्ड है, कैनवा हमें बहुत सारी इमेजेस फ्रीली अवेलेबल करवाता है, बट कुछ इमेजेस जो हमें अपने आप मुझे कैनवा में अपलोड मुझे खुद चाहिए कि मुझे अपनी इमेजेस को यूज करना है अपने किसी डिजाइन में, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वी विल अपलोड दोज इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, then we will those videos, audios and will be stored here in upload folder। ठीक है, डी फोल्डर, ये फोल्डर मैंने खुद बनाया है अपनी, जिसमें मैंने एक डिजाइन ऐड करके रखा है। ठीक है, तो ये फोल्डर्स की फैसिलिटी है जिसमें हम अपने डिजाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टीम्स फोल्डर, ये भी मैंने टीम्स के अंदर क्रिएट किया था, ये 2 फोल्डर्स जो मैंने खुद जनरेट किए। जितने भी डिजाइन आप डिलीट करोगे वो सारे किसमें जाएंगे, ट्रैश के अंदर। ठीक है, डिलीटेड डिजाइन विल बी हियर फॉर 6 days ओवर हियर। डिजाइन्स, इमेजेस जो डिलीट करी हैं, वीडियोस जो आपने डिलीट करी हैं, वो सारी कहाँ पे आएंगी, ट्रैश फोल्डर के अंदर। ठीक है, देन फोल्डर्स में योर फोल्डर्स, दीज आर ऑल माय फोल्डर्स, एंड शेयर्ड विद यू में अगर किसी और पर्सन ने मेरे साथ कोई फोल्डर शेयर किया है तो वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, दोस फोल्डर दैट आर शेयर्ड विद मी बाय अदर पर्सन। If you want to create a new folder, I already have created 2 folders here, so I cannot, for this yellow sign here, it means we have to go to the pro version। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 फोल्डर्स मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, तो मैं नया फोल्डर और क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करती हूँ, ठीक है, अब एक फोल्डर डिलीट हो गया, इट मीन्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, येलो साइन चला गया, इट मीन्स आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर। द फोल्डर नेम, this is email IDs with the persons with whom I can share my folder। ठीक है, मुझे अभी शेयर नहीं करना है, देन क्रिएट अ फोल्डर। यहाँ पे बता रहा है कि टीम्स, ये कौन कौन सी, ये फोल्डर कौन कौन देख सकता है, देवकी की जो टीम है वो सारे के सारे लोग देख सकते हैं इस फोल्डर को, और देवकी इटसेल्फ जो ओनर है वो देख सकती है इसको। ठीक है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है, इट मीन्स आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर ओवर हियर। ठीक है, फर्दर फोल्डर्स के भी ऑप्शंस हैं, फोल्डर को रीनेम करना है, ऐड अ बैनर, उसके बैकग्राउंड पे जैसे किसी फोल्डर को मैं ओपन करती हूँ, इस फोल्डर को ओपन करती हूँ, ये ग्रीन सा कलर है, दिस इज अ बैनर फॉर द फोल्डर। इसको भी, इसके बैनर को भी आप कैनवा में डिजाइन करके ऐड कर सकते हैं, मतलब कैनवा के अंदर ही कैनवा के डिजाइन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, फेवरेट्स के अंदर चला जाएगा आपका फोल्डर। ठीक है, डिलीट फोल्डर, अगर डिलीट करना है तो प्रेजेंटेशन, जैसे हम पीपीटी शेयर करते हैं, इस फोल्डर को मुझे किसी को प्रेजेंट करना है तो मैं इस फोल्डर को प्रेजेंट कर सकती हूँ। इस फोल्डर में जितने भी डिजाइन हैं 1 by 1 प्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो ये डिजाइन है मेरा प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन व्यू एज, कौन से व्यू में देखना है मुझे, ग्रिड और लिस्ट व्यू। एड अ न्यू फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। अपलोड, इस फोल्डर में मुझे कुछ और फाइल्स और फोल्डर्स और इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस कुछ भी अपलोड करना है इस फोल्डर में अपलोड कर सकती हूँ। इस फोल्डर को शेयर करना है तो मैं इसको अदर पर्सन के साथ शेयर कर सकती हूँ, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, शेयर का ऑप्शन मैं आगे आपको डिजाइन के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए यहाँ पे नहीं कर। ठीक है, देन ऑल मीन्स ऑल माई डिजाइन। ठीक है, देन अगेन हियर ओनली माई डिजाइन, दिस ऑप्शन
images, only my images in this folder that are available. ठीक है. Trash folder, Devki's team. This is my team. ठीक है. Options available here. I can edit the name of my team using this edit button. For example, and I can search anything over here and that will be available in my team only. ठीक है. Designs, all my designs here for my team. Folders for my team. These are all options for my particular team. Templates that I have created, but I have not created in this group. Apps to add new features to Canva. Already we have many features, but if we want to add some extra features in Canva, so then we can create apps. But for that, you have to you must have some development experience. पीपल, कौन कौन से लोगों के साथ मैंने ये ग्रुप में कौन कौन से लोगों को मैं अपना ये टीम में शेयर करना चाहती हूँ, जो डिजाइन मुझे शेयर करना है. ठीक है. शेयर करने के 2 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. या तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉपी कर लिया. ठीक है. इस टीम में मैंने जितने भी डिजाइन बनाए हैं वो सारे के सारे इसको मैं कॉपी करके जिस भी पर्सन को व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू इसको पेस्ट करके ये लिंक अगर मैं शेयर कर लेती हूँ, वो पर्सन इस टीम में जितने भी डिजाइन हैं ही कैन सी द ऑल दिस डिजाइन्स. ठीक है. अदरवाइज शेयरिंग के 2 ऑप्शंस कैसे हैं, आइदर आई कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस लिंक और आई कैन ऐड द ईमेल आईडीज ऑफ द पर्संस whom आई वांट टू शेयर. ठीक है. मेंबर फॉर एग्जांपल मुझे किसी के साथ शेयर करना है. ठीक है. ये मेरे पास ईमेल आईडी है. मेंबर बनाना चाहती हूँ या एडमिनिस्ट्रेटर. कि मेंबर होगा तो वो मेरे सिर्फ डिजाइन को एडिट कर सकता है. अगर मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हूँ तो वो हाई लेवल पे और भी उसमें फोल्डर्स वगैरह बनाने की फैसिलिटी भी उस पर्सन को अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से हम ये चीजें फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि किसी को अगर हमें इनवाइट करना है, ईमेल आईडी ऐड कर दी, मेंबर या एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको क्या बनाना चाहते हो, इस तरह से मल्टीपल मेंबर्स इन द सिंगल गो, इन वन गो आई कैन ऐड. ठीक है. ऐड अनदर अकाउंट आई कैन ऐड. सेंड इनविटेशन, इससे मैम के पास एक ईमेल आईडी चली जाएगी जिसके थ्रू वो उस लिंक को ओपन करेंगे, ईमेल को ओपन करेंगे और कैनवा में इस जितने भी डिजाइन मेरी इस टीम में है वो चेक कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. ठीक है. इनवाइट टीम मेंबर्स, दिस इज सेम ऑप्शन आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन टू यू. ठीक है. आइदर यूजिंग द लिंक और मेंबर्स ईमेल आईडीज को ऐड. ठीक है. तो ये सारी फैसिलिटीज बेसिक जो होम पेज पे हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. इस टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं. ठीक है. देवकी ऑलरेडी है, गुलकार, ये सारे मेरे, इनको मैंने इनविटेशन अभी सेंड किया है. जब ये ईमेल को ओपन करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये मेरी टीम के मेंबर बन जाएंगे. इट मींस इस टीम में जितने भी लोग हैं, ये तीनों लोग, जितने भी मैं पर्संस डिजाइन बनाऊंगी, ये तीनों पर्संस उस डिजाइन को एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं. ठीक है. फिल्टर कर सकते हैं कौन कौन से लोगों पर्संस को मैं अगर मेरी ये लिस्ट बहुत बड़ी है तो मैं कौन कौन से पर्संस को यहाँ पे व्यू करना चाहती हूँ, कि जो सिर्फ मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने टेम्पलेट्स को शेयर किया है, टेम्पलेट चेंजर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है. ठीक है. इस लिस्ट को फिल्टर करना है तो ये फिल्टर्स के थ्रू हम कर सकते हैं. सर्च, किसी पर्सन को सर्च करना है. ठीक है. तो आप ईमेल नेम के थ्रू हम इनको सर्च कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे शेयर हो गया. नेक्स्ट हम चलते हैं होम पेज. सर्च कैनवा. कैनवा में आप किसी भी चीज को सर्च करोगे उसके रिगार्डिंग आपको टेम्पलेट्स विजिबल हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट्स चेक करने हैं तो जो भी आप सर्च करोगे उसके रिगार्डिंग आपको टेम्पलेट्स विजिबल हो जाएंगे. इनमें से किसी भी टेम्पलेट्स को, ये सारे बिल्ट इन है ऑलरेडी. ठीक है. और इनमें जो एडिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है. और यहाँ पे 2 टाइप के टेम्पलेट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट आर द प्रो एंड अदर्स आर फ्री वर्जन्स. You have to see here. हम इनको फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे कि मुझे कौन से देखने हैं. इनमें से मैंने सर्च किया पहले, मेरे पास बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं और वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक डिजाइन यूजिंग दिस बटन. we have to create the design from the scratch. ठीक. एंड टेम्पलेट्स,
वी कैन फिल्टर दिस टेम्पलेट्स यूजिंग दिस ऑप्शंस। किस टाइप की कोई पर्टिकुलर अवार्ड टाइप के मुझे सर्टिफिकेट्स देखने हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स के डिजाइन देखने हैं, या पर्टिकुलर स्टाइल एलिगेंट इलस्ट्रेशन टाइप के, और आई वांट टू सी ओनली द फ्री डिजाइंस बिकॉज आई डोंट वांट टू पे फॉर इट। सो ऑल दीज आर फ्री डिजाइंस अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, ये फ्री डिजाइन है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। वी कैन यूज ऑल दिस डिजाइन ओवर हियर। प्रो मीन्स पेड डिजाइंस। एंड कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं कि जिन टेम्पलेट्स में मुझे ये पर्टिकुलर कलर हो, उस टाइप के टेम्पलेट्स दिखाओ, इस पर्टिकुलर कलर। ठीक है, तो जिनमें पिंक कलर होगा उस तरह के डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ब्लैक टाइप के डिजाइन जिनमें ब्लैक कलर। ठीक, क्लियर और फिल्टर्स, मुझे ये सारे फिल्टर्स को रिमूव करना है, तो क्लियर ऑल 6 फिल्टर्स, ऑल द डिजाइन विल बी अवेलेबल। सो डिजाइन से मैंने सर्च किया और उसके अकॉर्डिंगली मुझे किस टाइप के डिजाइन चाहिए मैं उनको फिल्टर कर सकती हूँ, वो पर्टिकुलर टाइप के डिजाइन मेरे पास अवेलेबल आ जाएंगे। ठीक है, योर डिजाइन्स, जो मेरे डिजाइन हैं, सर्टिफिकेट जिनमें सर्टिफिकेट कहीं पे लिखा हुआ है, वो सारे मेरे डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब मैंने सर्च किया सर्टिफिकेट, जहां कहीं भी किसी फाइल के नेम में सर्टिफिकेट है या फिर फाइल के कंटेंट में कहीं पे भी सर्टिफिकेट लिखा है, वो सारे मेरे डिजाइन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, योर डिजाइन मीन्स इन माई डिजाइन, नॉट इन ऑल ओवर कैनवा। ठीक है, दीज आर 2 टैब्स अवेलेबल हियर। ठीक है, then this is a help center. I can if I want to know something about to learn something about Canva, so I can use here. सर्च करो, यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखो Canva के बारे में, वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेटिंग्स। दिस इज द अकाउंट सेटिंग्स इन Canva। ठीक है, first is I have logged in. This is my name and email ID, your account, my name over here, and this is my email ID. I can edit all this. ठीक है, किस टाइप, जब हम कैनवा को फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं तो वो हमें पूछता है कि किस पर्पस के लिए हम कैनवा को यूज कर रहे हैं, तो उस पर्पस को हम चेंज कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए, एज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, लार्ज कंपनी, और आई हैव यूज्ड द ऑप्शन पर्सनल। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आपको कैनवा में, किस लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की डिजाइन। ठीक है, ईमेल प्रेफरेंसेस, आई हैव अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑल। अदरवाइज क्या होता है कि कैनवा आपने लॉगिन किया हुआ है, अब कैनवा जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने कैनवा में लॉगिन किया है, उस ईमेल आईडी में आपके कैनवा के बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो मेल्स, अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑल, मैंने सबको डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, ताकि मुझे कैनवा की मेल्स बार बार मेरे जीमेल अकाउंट को फिल ना करें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन सबको डिसेबल किया हुआ है, अदरवाइज मेल्स बहुत सारी आती रहती हैं कैनवा से। दिस इज माय अकाउंट वेयर आई हैव एक्सेस्ड ओवर हियर। लॉगिन सिक्योरिटी, लॉगिन पासवर्ड अगर आप ऐड करना चाहते हो, ये दिस आर ऑप्शन। डिलीट करना है आपको अपना अकाउंट, और जहां जहां पे भी साइन इन किया हुआ है अलग अलग डिवाइसेस पे, साइन आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइस फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, बाय चांस आपने किसी और सिस्टम पे लॉगिन करके आप भूल गए हो, तो साइन आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस पे आपने कैनवा पे लॉगिन किया था, सारे डिवाइसेस से आप लॉग आउट हो जाओगे। और अगर आप कैनवा नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो, आपके जितने भी डिजाइन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे फॉर एवर। ठीक है, ये देवकीज ग्रुप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एज अ टीम काम करना है तो ये उसी के ऑप्शन है, कौन कौन से लोग हैं, उनमें कौन से ग्रुपिंग है। बिलिंग मतलब कि अगर आपने कैनवा में कोई डिजाइन तैयार किया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट है, टी शर्ट का डिजाइन तैयार किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टी शर्ट को अगर फर्दर प्रिंट के लिए सेंड कर सकते हो, तो उसके लिए सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उस पर्सन के साथ क्या आपने बार्गेनिंग की है, क्या प्राइस रखा है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रिंटिंग के ऑर्डर्स दिए हैं, आपने कोई बैनर बनाया है या उसको प्रिंट के ऑर्डर्स देने हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, मैनेज टीम्स, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 टाइप की टीम्स है मेरे पास, एक मेरी अपनी टीम है और एक मैं जीजीएन टीम में हूँ, जो किसी और ने क्रिएट की थी, जिसकी मैं मेंबर हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेंबर मींस उस टीम की मैं सिर्फ मेंबर हूँ, बट नॉट द ओनर। ये टीम मैंने खुद बनाई थी, देवकीज ग्रुप, इसीलिए मैं इसकी ओनर हूँ, और इसमें 2 मेंबर्स हैं जिसको मैं डिलीट कर सकती हूँ। ये किसी और ने बनाई थी, इसीलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती, एज आई एम ओनली अ मेंबर ऑफ दिस टीम। ठीक है, देयर आर 4 मेंबर्स इन दिस टीम। ठीक है, तो अब इस टीम में मैं हूँ। और अगर आपको टीम पे स्विच करना है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, अपनी जीमेल आइकन पे जाओगे, यहाँ पे जाकर के अकाउंट सेटिंग्स पे जाओगे तो ये सेम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, हेल्प, देवकीज ग्रुप में मैं अभी हूँ,
अगर मुझे टीम पे स्विच करना है, इस टीम की बजाय किसी दूसरी टीम में काम करना है, तो मैं GGN टीम पे क्लिक करूंगी, उस टीम में मेरे जितने भी डिजाइन है वो मुझे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टीम्स पे स्विच कर सकते हैं। अभी मैं ऑलरेडी देवकीज ग्रुप में रहती हूँ, मैं इसी टीम में काम कर रही हूँ। साइन आउट करना है, साइन आउट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है, डिजाइन हमें कोई क्रिएट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट अ डिजाइन। क्या क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीजें हम कैनवा में अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं। रीड, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, PPT बनानी है, वो तैयार कर सकते हो। कोई पोस्टर बनाना है, पोस्टर ये कौन सा होगा, पोर्ट्रेट स्टाइल में, ये लैंडस्केप स्टाइल में। सर्टिफिकेट जनरेट करना है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट करना है, फेसबुक स्टोरीज बनानी है, कोई वीडियो है, यूट्यूब इंट्रोडक्शन के लिए आपने कुछ वीडियो बनानी है वो क्रिएट करनी है, एंडिंग पेज बनाना है, यूट्यूब बनाना है, ये सारी चीजें आप कैनवा में डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कार्ड डिजाइन करना है, कोई फ्लायर, लोगो बनाना है, फोटो कोलाज बनाना है, आपके पास बहुत सारी फोटोज हैं मेमोरी की, आप उनका कोलाज बना सकते हो। इन्फोग्राफिक्स, ऑफिस रिलेटेड वर्क भी यहाँ पे कुछ लिमिट फैसिलिटी तक किया जा सकता है। ठीक है, A4 साइज का डॉक्यूमेंट बनाना है, रिज्यूमे, जैसे मिस्टर बिस्मनजीत सर समझाएंगे आपको रिज्यूमे कैसे जनरेट करना है, वीडियो, इनविटेशन, ब्रोशर बनाना है, बैनर, डेस्कटॉप वॉलपेपर, डेस्कटॉप के पीछे आपने कोई वॉलपेपर आप अपनी मर्जी से लगाना चाहते हो उसका डिजाइन तैयार कर सकते हो, फोन का, मोबाइल फोन का वॉलपेपर अगर आपको डिजाइन करना है वो सब डिजाइन किया जा सकता है। बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वर्कशीट, ग्राफ, चार्ट्स, लेटर, जूम बैकग्राउंड, बुक के कवर बनाने हैं, टैग्स बनाने हैं, लेटर हेड बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी, वेबसाइट के डिजाइन, फर्दर फ्रंट का डिजाइन आपको तैयार करना है वो डिजाइन तैयार कर सकते हो, टी शर्ट्स, लेबल्स, टिकट्स बनानी है, टैग्स बनाने हैं, ये बहुत सारी चीजें आप कैनवा में डिजाइन तैयार कर सकते हो। फेसबुक वीडियोस बनानी है, फोन वॉलपेपर, रिपोर्ट कार्ड, एल्बम कवर, ग्रुप वर्क, बहुत सारे डिजाइन हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजाइन यू कैन क्रिएट यूजिंग द कैनवा। मग, मग के ऊपर कवर डिजाइन तैयार करना है आपको, वो आप सारे डिजाइन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज इन सब डिजाइन की अपने अपने डायमेंशन है, फिक्स्ड हैं। देखो इसमें 21 बाय 29.7 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे जो जो डिजाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके डिजाइन की जो साइज है उसको आप रीसाइज नहीं कर सकते हो। अगर रीसाइज करना है तो आपको प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, देन इफ यू वांट टू क्रिएट अ डिजाइन ऑफ योर ओन डायमेंशंस, अपनी तरफ से मुझे डायमेंशंस का डिजाइन तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, कस्टम साइज पे जाएंगे। कस्टम साइज, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स हैं, मेजर्स हैं, इंचेस, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स अकॉर्डिंग टू दिस एंड इन पिक्सल्स। ठीक है, तो जो मेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस मेजर के अकॉर्डिंग जो डायमेंशंस आपने दी हैं 200 बाय 200 250। ठीक है, जिस डायमेंशन का आपको डिजाइन तैयार करना है उसकी डायमेंशन आपने दे दी, क्रिएट अ न्यू डिजाइन, उस डायमेंशन का डिजाइन आप उससे भी तैयार कर सकते हो। बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंट डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो आप उसको फर्दर न्यू डिजाइन आपको तैयार कर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, so create a new design using this button, search templates is a tab, home tab is already covered. टेम्पलेट्स, यहाँ पे मैंने जो और बहुत सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करी हैं, क्या कौन से टेम्पलेट्स, मतलब बिल्ट इन डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हैं कैनवा में। इन बिल्ट इन डिजाइन को हम यूज करके उनमें फर्दर जितनी मर्जी एडिटिंग हम कर सकते हैं, उनकी कलर स्कीम चेंज करनी है, जितनी भी जिस लेवल पे भी एडिटिंग आपको चाहिए आप उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया कौन से हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट, ये सब चीजों के डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, पर्सनल टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं, बिजनेस टेम्पलेट्स, वेबसाइट्स, लोगोज, बिजनेस कार्ड, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, क्लासरूम शेड्यूल्स, बुकमार्क्स, लेसन प्लान्स, इन सब डिजाइन्स को के टेम्पलेट्स हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे पास कैनवा में, कौन कौन से हैं, फोटोज बहुत सारी हमें फ्रीली अवेलेबल फोटोज हैं, बैकग्राउंड्स आपको बिल्ट इन ऑलरेडी मिल जाएंगी,
नेचर रिलेटेड कोई इमेजेस आपको चाहिए, एनिमल्स, किसी भी टाइप की फोटोज आपको चाहिए, बहुत सारी यहाँ पे फ्रीली फोटोज अवेलेबल हैं जिनको आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको इफ यू वांट टू यूज योर ओन फोटोग्राफ्स देन यू हैव टू अपलोड दोस फोटोज। मतलब मुझे अपनी ही पर्टिकुलर कोई फोटो को अपने डिजाइन में यूज करना है तो उसको फर्स्ट यू हैव टू अपलोड, ठीक है, देन उसके बाद में आप यूज करते हो, ठीक है। ये सारे आइकन्स हैं, प्रिंट प्रोडक्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज, हम एप्स, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। QR कोड्स मुझे जनरेट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं, गिफी इमेजेस को यूज कर सकते हैं, गूगल मैप्स को यूज कर सकते हैं, इमोजीज हम यूज करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस को यूज कर सकते हैं, सारे के सारे अपने डिजाइन में हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कैनवा के ऑनलाइन वर्जन को यूज नहीं करना है, मतलब मैं उसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहती, तो यह हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। आप कैनवा को अपने मैक के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के लिए, या एप्पल के फोन के लिए, आईफोन के लिए, अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हो, उसको डाउनलोड करके भी आप उसमें साइन अप या साइन इन करके कैनवा को यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप डाउनलोड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन आप ब्राउजर के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहते हो वो फैसिलिटी भी हमारे पास कैनवा में अवेलेबल है। अगर कैनवा के रिगार्डिंग कुछ भी आपको लर्न करना है, कुछ भी टॉपिक है, तो बहुत सारे लर्निंग मटेरियल ऑलरेडी कैनवा की वेबसाइट पे हमारे पास यहाँ पे लर्निंग टैब के अंदर अवेलेबल है। पूरे कंप्लीट कोर्सेज हैं यहाँ पे, ये कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ वीडियोस, मतलब काफी टाइम की बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस का कॉम्बिनेशन है ये पूरा कोर्सेज। यहाँ पे भी ये वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम कैनवा को लर्न कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। और ये हैं ब्लॉग पेजेस जिनके थ्रू आप कैनवा को लर्न कर सकते हो, ये वेब पेजेस की फॉर्म में है, ब्लॉग्स की फॉर्म में, और ये जो दोनों ऑप्शंस हैं वीडियोस की फॉर्म में आप इनको लर्न कर सकते हो कैनवा को, ठीक है। प्राइसिंग का ऑप्शन ऑलरेडी है, फ्री, प्रो, एंटरप्राइज, एजुकेशन, ऑल दीज। नाउ अब मैं किसी पर्टिकुलर डिजाइन पे जाते हैं, वो कैनवा के अंदर वर्क कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। कस्टम डिजाइन का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर नया डिजाइन आपको तैयार करना है उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर डिजाइन पे जाती हूँ, कोई टेम्पलेट को सर्च करना है, उस टेम्पलेट पे भी जा सकते हो। हर पेज के लिए कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इस डिजाइन को, ये ऑलरेडी मेरा फर्स्ट पेज का डिजाइन है, अगर इसको मूव डाउन करना है तो मूव डाउन, ठीक है। वन बाय वन ये अप एंड डाउन एक एक पेज को आप मूव कर सकते हो। आप सेकंड पेज पे आ गए इस डिजाइन को, ठीक है। एंड देन डुप्लीकेट, इसी डिजाइन को अगर मुझे इसी डिजाइन की एक और कॉपी जनरेट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक टीम में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किसी को शेयर करना है, तो सबसे पहले उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, ठीक है। और पूरी कंप्लीट इस ऑप्शन से आप करोगे, सिर्फ इसी पेज का डुप्लीकेट क्रिएट होगा, ठीक है, इसका एक और डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। बट अगर मुझे पूरी कंप्लीट फाइल है, इस फाइल को अगर व्यू करना है, इस फाइल को अगर मुझे व्यू करना है तो इस ऑप्शन पे देखो, इसको क्लिक करोगे, जितने भी पेजेस हैं मेरी इस फाइल के अंदर वो सारे मुझे व्यू हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे। और इसी को फिर से क्लिक करो, पर्टिकुलर पेज बाय पेज यू कैन सी योर डिजाइन, ठीक है। और इसी पेज के साइज को देखना है, इसी पेज की साइज को मुझे इंक्रीज और डिक्रीज करना है, जूम इन जूम आउट, आई कैन डू दिस यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, मूव अप एंड मूव डाउन। एंड देन थर्ड नेक्स्ट इज द डुप्लीकेट, डिलीट, इस पर्टिकुलर पेज को मुझे डिलीट करना है। और दिस इज एड अ न्यू पेज, एक ब्लैंक पेज को ऐड करना है, दिस इज अ ब्लैंक पेज एडेड टू माय दिस फाइल, ठीक है। These are the options available. पेज का नेम देना है, इस ऑप्शन के थ्रू आप पेज को नेम दे सकते हो। और टेम्पलेट्स में जाकर के सबसे पहले इस बार को चेक कर लेते हैं, होम बटन पे क्लिक करने पे आप जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया है, होम पेज, कैनवा के होम पेज पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट इज द फाइल ऑप्शन, यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज करना है, जो नेम यहाँ पे है वो नेम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो एडिटिंग आपने देनी है वो सेम एज यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्रिएट अ न्यू डिजाइन, न्यू डिजाइन का ऑप्शन जो ऑलरेडी मैंने बताया है, शो रूलर्स, ग्रिड्स एंड मार्जिन्स, मतलब आपको
लाइंस डिफरेंट डिफरेंट रूलर अगर चाहिए कि कितना कितना मार्जिन और स्पेसिंग आपने चेक करनी है, उसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सिर्फ कैनवा के अंदर अवेलेबल है, प्रिंट के अंदर, डिजाइन के अंदर नहीं अवेलेबल आएंगे। ठीक है, ग्रिड्स को व्यू करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको, ये देखो रूलर नजर आ गया है। ठीक है, सो यू कैन सी ऑल दिस डिजाइन्स ओवर हियर। नेक्स्ट सेव, सबसे एक और फीचर बहुत अच्छा है कैनवा में, अगर बाय चांस स्विच ऑन शट डाउन हो जाता है आपका सिस्टम, तो कैनवा क्या है, ऑटोमेटिकली चेंजेस जितने भी आप करते हो वो सेव ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको चेंज सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, साथ साथ में ऑटोमेटिकली सेव का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको सेपरेटली सेव करना नहीं पड़ता। बाई चांस अगर सिस्टम शट डाउन भी होता है आपका, जैसे ही आप काम कर रहे हो और आपने सेव नहीं किया, तो वो ऑलरेडी सेव्ड डिजाइन में रहेगा आपका। ठीक है, तो बाई चांस मतलब नॉर्मली हम क्या, अगर डेस्कटॉप वर्जन में किसी की काम करते हैं तो जितना काम हमने कर लिया है, उसके बाद में अगर सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है, तो सारा जितना भी आपने किया है वो सारा अनडू हो जाता है आपका टास्क तो है। ठीक है, बट इसमें ऑल जितने भी वर्क आपने किया है, डिजाइन किया है, वो सारा सेव्ड रहता है। सेव टू फोल्डर, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है तो। कमेंट्स की इतनी जरूरत नहीं। मेक अ कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि इस फाइल की एक कॉपी बना के अपने पास रखो, और किसी और को शेयर करनी है तो उस कॉपी को शेयर करो। मेक अ कॉपी किया मैंने। ठीक है, मेरी फाइल का नेम भी चेंज हो गया, कॉपी ऑफ वेबिनार इनविटेशंस देव की। ठीक है, उसके आगे कॉपी का ऑप्शन नेम आ जाता है जब उसकी कॉपी जनरेट। तो एक ऑलरेडी कॉपी आपने रखी है, और जो चेंजेस करना है तो इस फाइल के अंदर आप जो चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। डाउनलोड करना है, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, और ये ऑप्शंस भी डाउनलोड का ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद में उसको चेक करके देखते हैं। डाउनलोड में जाकर एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एड अ न्यू पेज। ठीक है, मैंने एक पेज लिया है। टेम्पलेट्स में जाओगे आप, इस टेम्पलेट्स में जाकर के सर्टिफिकेट्स, उसके टेम्पलेट्स आ जाएंगे। कई बार क्योंकि ये ऑनलाइन वर्जन है, तो कई बार इसमें हैंग होता है, क्योंकि ये सारा काम सर्वर पे साथ के साथ हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कई बार कुछ ऑप्शंस आप करना चाहो तो वो नहीं भी चलते, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में जाकर के सर्टिफिकेट्स, लेट मी सर्च फॉर फ्री सर्टिफिकेट्स, दिस वन। ठीक है, देन मैंने कोई टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, उस ऑप्शन से भी आ जाते जो मैं पहले कर रही थी। सीधा टेम्पलेट्स में जाओगे, किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप देखोगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, आपने क्या करना है, इसी को मैंने यूज करना है, कस्टमाइज करना है। ठीक है, अब देखो टेम्पलेट्स ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मुझे ये डिजाइन चाहिए, कोई भी डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है यहाँ पे, जिस भी तरह का आपको डिजाइन चाहिए यू कैन यूज दैट डिजाइन। ठीक है, ये पेड वर्जन है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये इसको आपको पे करना पड़ेगा, और जो अगर फ्री वर्जन है आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। जैसे ये फ्रीली अवेलेबल डिजाइन है, और इसमें अगर एडिटिंग करनी है, सिंपली क्लिक ऑन दैट एलिमेंट। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से डिजाइन बना है। ठीक है, हर एलिमेंट को आप क्लिक करोगे, आपको चाहिए नहीं चाहिए यू कैन यूज इट। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, क्लिक एंड ड्रैग, ये फैसिलिटी, ये चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज एडिटेबल। कंटेंट मूव कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस करना है, सिंपली टाइप ओवर हियर एंड चेंजेस कैन बी डन। और जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे आओगे तो जितने भी यहाँ पे टूल बार आ जाएगी, और उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, कौन सा आपको फॉन्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन दिस इज द साइज, फॉन्ट के साइज को चेंज करना है। ये है बटन डिक्रीज फॉन्ट बाय 1, एक एक करके अगर रिड्यूस करना चाहते हैं
या इंक्रीज करना चाहते हो, या आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलरली इतना फॉन्ट चाहिए, तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर कौन सा देना चाहते हो। ठीक है, टेक्स्ट कलर के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर पिक किया, और इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद में इस कलर पे, इस बटन पे जाओगे, उस कलर की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। मतलब बहुत सारे कलर्स में वेरिएशंस आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। देखो यहाँ जितना मूव करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज होता रहेगा। और यहाँ से मुझे कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर कलर पे जाना है, अगर मुझे ग्रीन की शेड देखनी है तो ग्रीन के अकॉर्डिंगली आप इसके कलर की शेड्स देख सकते हो। अगर मुझे रेड चेक करनी है तो रेड पे गए, और रेड की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर ही पता है कि मुझे ये कलर है, हर एक कलर का यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड होता है, इसको कॉपी कर लो। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, और ये वाला टेक्स्ट है मेरा, और इसका मुझे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और उसका कलर भी उसी कलर का सेम हो गया। कि सिंपली सेम कलर आपको चाहिए, आपको पता लग जाए, तो कलर को वहां से कोड को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, सेम कलर का टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट और सेंटर आपको सेट करनी है टेक्स्ट की, और पॉइंट्स बनाने हैं, लिस्ट जनरेट करनी है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेटर स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स कितना, देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज, स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज करनी है आपको लेटर्स के बीच में। ठीक है, और ये है लाइंस के इन बिटवीन स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, सिंपली लाइंस के बीच में आपको स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। दिस इज फॉर लाइन स्पेसिंग, एंड फर्स्ट वन इज फॉर लेटर स्पेसिंग। ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके इफेक्ट्स, ठीक है, जिस भी तरह के, बाय डिफॉल्ट इफेक्ट इज ऑफ नन, यू कैन गिव एनी स्टाइल ऑफ इफेक्ट, किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हो उस टेक्स्ट को, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है सबके। ठीक है, फर्दर हर एक के ऑप्शंस हैं। अगर ये शेडो वाला इफेक्ट लेते हो तो उसमें आप कितना शेडो या कलर की चेंजेस करना चाहते हो, ये सारी चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्लर, ये सारे ऑप्शंस, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर, हर एक डिफरेंट स्टाइल के लिए, इफेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह का टेक्स्ट बनाना है, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। टेक्स्ट के ऊपर जितना भी आपको इफेक्ट्स को चेंज करना है वो आप टेक्स्ट और इफेक्ट्स में जाकर के चेंज कर सकते हो। देन एनिमेशन, एनिमेट करना है आपको। ठीक है, टेक्स्ट को एनिमेट करना है, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ये कब चलेंगे, अगर आप सर्टिफिकेट्स डिजाइन करते हो जिनका आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो या सॉफ्ट कॉपी है, उनमें तो नहीं वर्क करेंगे। बट जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कोई पीपीटी प्ले करनी है, उनमें ये ट्रांजिशन एनिमेशंस विजिबल होंगे जब आप उनको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें उनके लिए हैं। ठीक, एनिमेशंस में बाय डिफॉल्ट आई एम यूजिंग द नन, क्लियर। देन फर्दर ऑप्शंस हैं, अंडरलाइन यू नीड और नॉट। ठीक है, दिस इज कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपने फॉन्ट स्टाइल को लिखा था पहले। ठीक है, पोजीशन, किस तरह की पोजीशन, कहाँ पे आप टेक्स्ट को सेट करना चाहते हो, अप लेफ्ट राइट सेट। दिस इज कॉपी स्टाइल, स्टाइल को मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, तो सेम स्टाइल, जो कलरिंग और जो फॉन्ट स्टाइल मैंने इस टेक्स्ट के लिए ली थी, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ से, कॉपी स्टाइल ऑप्शन से। सिंपली इसको ऑप्शन एक को सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट द कॉपी स्टाइल एंड पेस्ट ओवर हियर, क्लिक ओवर देयर, सिंपली उस टेक्स्ट के ऊपर भी वही स्टाइल पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए वी विल सी ओवर अदर एलिमेंट ओवर हियर। ठीक है, जैसे ये येलो है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा फीचर है। ट्रांसपेरेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, 100 है मतलब टोटली नो ट्रांसपेरेंसी। अब इसको जैसे इसकी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है कि आप उसके अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन चेक कर सकते हो। लेट मी चेक। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स को
जैसे ये शेप थी मैंने पिक करी है, इसको अप एंड मूव कर सकते हो बैक और फ्रंट के अकॉर्डिंगली। जैसे राइट क्लिक किया, सेंड बैकवर्ड, एक पीछे चला जाएगा ताकि मेरा जो टेक्स्ट मैंने रिटर्न है, टेक्स्ट जो टाइप किया है वो फ्रंट पे आ जाए, तो ये पीछे चला जाए। वन बाय वन यू कैन सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इस तरह से। ठीक है, बैकवर्ड सेंड करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर फॉरवर्ड पे लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी, मैं चाहती हूँ कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना है, तो वो आप इजीली, अब ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बैकग्राउंड पे जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है, बट अगर इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी करते हो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो बैक एंड पे टेक्स्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है, ये लिंक है शेयर करने के लिए उस डिजाइन को। लॉक, लॉक की फैसिलिटी का मतलब है कि मैंने ये डिजाइन, ये सारी सेटिंग्स कर ली है। ठीक है, इन सबको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं लॉक कर लेती हूँ, जैसे मैंने इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस द शिफ्ट बटन, इसको जितने भी सिलेक्ट करते जाओगे वो सारे इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, ये सारे मेरे सिलेक्ट हो गए यूजिंग द शिफ्ट की। ठीक है, देन प्रेस द लॉक। लॉक का मतलब अब इनमें चेंजेस नहीं कर सकते जिनको आपने लॉक कर लिया है। कुछ का वर्क है जो आपने, मैंने सेटिंग कर ली है कि इसको मेरी बाई चांस गलती से भी चेंज ना हो, तो उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट की के थ्रू मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया, उसको लॉक कर लो। ठीक है, अब ये आपके चेंजेस नहीं हो सकते जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है? अगर इनको अनलॉक करना है तो इसी बटन को फिर से क्लिक करो, अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अनलॉक हो जाएंगे फिर एडिट हो जा सकते हैं, अदरवाइज वो एडिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये है डुप्लीकेट, उसकी कॉपी जनरेट करनी है तो डिलीट करना है तो डिलीट दिस ऑप्शन। ये टेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, शेप्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। शेप जो हमने जनरेट करी है उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर क्या चेंज करना है। ठीक है, ये टूल बार अकॉर्डिंग टू चेंज होती जाएगी। अगर टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और अगर आपने कोई शेप उठाई है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर इमेज उठाई है तो अकॉर्डिंगली इमेज के अकॉर्डिंग उसका डिजाइन चेंज होता जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम सेम सी हैं। ठीक है, अगर है इमेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू टेक्स्ट। ठीक है, अब इस लेफ्ट साइड पे जो पैनल है, फर्स्ट इस बार को कंप्लीट करते हैं। शेयर, अगर मुझे इस डिजाइन को शेयर करना है किसी पर्सन के साथ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, उस पर्सन की ईमेल आईडी डाल दो और सेंड इनविटेशन। ठीक है, इनवाइट कर लो, जैसे मैंने किसी की ईमेल आईडी डाली। जब ये ईमेल आईडी कंप्लीट हो जाएगी, सेंड करोगे, उस पर्सन के पास ईमेल आईडी मेल जाएगी और उसके थ्रू वो एडिट कर सकता है डिजाइन को। या फिर कॉपी लिंक, इसको कॉपी कर लो और उस पर्सन को पेस्ट कर दो, सेंड कर दो। वो पर्सन इस लिंक को क्लिक करके ओपन करेगा और उसके पास डिजाइन को वो एडिट कर सकता है। जो मैंने बताया, आप आपस में शेयर कर सकते हो डिजाइन को। ठीक है, देन मैंने डिजाइन तैयार कर लिया, उसको डाउनलोड करना है तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। किस फॉर्म में डाउनलोड करना है उसके लिए ऑप्शन है। मैं एज अ पीएनजी इमेज डाउनलोड करना चाहती हूँ, एज अ जेपीजी, पीडीएफ, और ये सारे कुछ ऑप्शंस प्रो में अवेलेबल होंगे। पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट स्टाइल, कौन से ऑप्शन में आप उसको प्रिंट करना, डाउनलोड करना चाहते हो, जेपीजी करना है। ठीक है, उसके फर्दर ऑप्शंस आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, सेव डाउनलोड्स एंड यू कैन क्लिक दिस डाउनलोड ऑप्शन विल बी, डिजाइन विल बी डाउनलोडेड टू योर सिस्टम। ठीक है, अब ये मेरे पास सिस्टम मेरा डाउनलोड हो गया है डिजाइन। ठीक है, प्रिंट एंड दीज आर ऑप्शंस आर अगेन अवेलेबल, यू वांट टू शेयर विद अदर्स। डाउनलोड करना है, पीपीटी की थ्रू फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट करना है, लिंक शेयर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आप इनको शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे शेयर करना है, फर्दर डायरेक्टली इन डिजाइन को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ये बार कंप्लीट हो गई है। टेम्पलेट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ऑल द टेम्पलेट्स आर, मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स अदर एक्सेप्ट द प्रो वर्जन्स आर एडिटेबल। ठीक है, प्रो में आपको फीचर्स हैं कि आपको पे करना पड़ेगा तभी आप उनको एडिट कर सकते हो, बट फ्रीली भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं जिनको आप इजी से एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स, ये बहुत सारी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे। हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लाइंस एंड शेप्स, ठीक है, सर्कल है, स्क्वायर है, लाइन है, जिस इन पे क्लिक करोगे बहुत सारी लाइंस एंड शेप्स के डिजाइन आ जाएंगे जो आप अपने डिजाइन में ऐड करना चाहते हो। अ नंबर ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल। ठीक है, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो, सिंपली उसको ड्रैग करो, क्लिक करो एंड यू कैन एडिट दिस डिजाइन। इसका कलर चेंज करना है, देखो 3 शेड्स हैं तो 3 शेड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कलर, एक एक को क्लिक करो
और डिजाइन कलर सेलेक्ट करते जाओ और उस शेप का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइज उसको चेंज करना है, रीसाइज यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एनिमेट करना है, एनिमेशंस के फर्दर ऑप्शंस, बट इफ यू आर यूजिंग अ पीपीटी दिस विल बी अवेलेबल, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, इन जेपीजी इमेजेस। ठीक है, इस तरह से आप एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो। देन पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है, कॉपी स्टाइल, ट्रांसपेरेंसी जो ऑलरेडी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हो अगर आपको सेट करनी है। ठीक है, लिंक शेयर करना है, लॉक करना है, कॉपी डुप्लीकेट करना है इसी डिजाइन का और इसको डिलीट करना है। तो एलिमेंट्स में आपके पास लाइंस एंड शेप पे क्लिक कर, आप यहाँ पे भी सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट चाहिए, ग्रेडियंट्स यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट मुझे चाहिए और ग्राफिक्स में जाकर के हम ग्रेडियंट इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैंने सर्च किया, किसी भी टाइप का एलिमेंट आपको चाहिए, फ्लावर चाहिए, फ्लावर को सर्च करो, जो भी सर्च करोगे उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेंगे जिनको आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए, ये वाला चाहिए ग्रेडियंट इफेक्ट। इट विल टेक सम टाइम आई थिंक। ठीक है, ये वाला इफेक्ट आ गया। अब ये जो है कैनवा लिखा है, इट मींस इट इज अ पेड वर्जन, सम ऑफ आर फ्री, यू कैन यूज देम। ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इस डिजाइन को अगर मैं यूज करना चाहती हूँ, इस ग्रेडियंट के देखो दो कलर्स हैं, ब्लू पर्पल एंड व्हाइट कलर से बना है। ठीक है, इस व्हाइट की शेड को मैं पिंक दे देती हूँ और पर्पल को हम चेंज कर सकते हैं येलो के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, तो आप इन शेड्स को भी अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स फर्दर अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स में बिल्ट इन डिजाइन होंगे, एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो आप अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली यूज लाइंस एंड शेप्स, ग्राफिक्स को ऐड करना है किसी भी टाइप की, इनको एडिट कर सकते हैं, इजीली एडिटेबल है ग्राफिक्स। जैसे मतलब जो भी आपने ग्राफिक उठाया उसकी फर्दर कलर स्कीम चेंज करनी है, साइज चेंज करना है, यू कैन डू। फोटोज अवेलेबल हैं फ्रीली, वीडियोज आप अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हो, ऑडियोज अगर यूज करना चाहते हो, मतलब अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपने यूट्यूब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन वाली स्टार्टिंग वीडियो बनाई है, तो उसमें ये ऑडियो विल बी you can listen to this audio, but in jpg certificates and resume you can not listen these audios. Hello Devki ma'am. हाँ जी मैम। I know I'm very sorry to interrupt you, and you are all into it, explaining all the features in very much detail, and I know you can carry it for another 2 hours, but we have time restrictions and there are so many questions coming in. So can we take the questions now, please? Yes ma'am, yes, no problem. Okay. Ma'am, can we design a flow chart in Canva? Yes ma'am, we can design a flow chart. सबसे पहले तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, मुझे कैलेंडर चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, यहाँ पे सर्च कर लो, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी डिजाइन्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और उसको आप इजीली एडिट कर सकते हो। ठीक है, इजी टेम्पलेट्स मिल जाता है, स्क्रैच से बनाने से अच्छा होता है कि आप यहाँ पे सर्च करो, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिजाइन को पिक करती हूँ, ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक, अब फ्लो चार्ट्स में वही हमारे पास शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल होंगे, सर्कल्स होंगे, इनके थ्रू आप इसी को भी, इस फ्लो चार्ट को बना हुआ है, इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, जो मर्जी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। ठीक है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा उसको इजीली मैं चेंज कर सकती हूँ। इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप इनकी डिजाइन एरोज को अप एंड डाउन करनी है, सारा मूव कर सकते हो इजीली। तो बेटर ऑप्शन ये है, बट अगर फिर भी आपको डिजाइन स्क्रैच से बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। ब्लैंक पेज लो, अपना एक नया डिजाइन तैयार करो, ऐड अ पेज, ब्लैंक पेज आ गया, उसमें जितने भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है स्क्रैच से, आपको पहले शेप चाहिए तो आप शेप को ऐड करोगे। ठीक है, उसमें टेक्स्ट आपको चाहिए तो टेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से आप टेक्स्ट उठा सकते हो, क्लिक करोगे, टेक्स्ट ऐड हो सकता है। सिंपली ड्रैग, और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट चाहिए ठीक है, और इस टेक्स्ट की सेटिंग करनी है वो सारी आप इजी से कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको क्या चाहिए, कोई एरो चाहिए
डाउन एरो, इस एरो को रोटेट करना है तो इस शेप को इजी से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो इस तरह से इन फिगर्स को आप शेप्स को यूज करके यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट। Thank you, ma'am. Next question is, can we download these designs without watermark? नो, जो प्रो वर्जन्स में अवेलेबल हैं डिजाइन्स, उनको आप वाटरमार्क रहेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे कर सकते हो तो वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, जो फ्री वर्जन्स हैं उनमें विदाउट वाटरमार्क ही रहेंगे, बट जो पेड कोई टेम्पलेट आप यूज करते हो, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हुए, जैसे ये प्रो है, इसमें वाटरमार्क रहेगा ही रहेगा। बट अगर आप पे करते हो उसके अकॉर्डिंगली जब इसको डाउनलोड करोगे, देखो रिमूव वाटरमार्क के लिए आपको पे करना पड़ता है जब इस डिजाइन को डाउनलोड करते हो। ठीक है, पे एंड डाउनलोड, पे एंड डाउनलोड मतलब तब इसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। और अदरवाइज ऑप्शन क्या है, डाउनलोड अ फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट। ठीक है, वाटरमार्क रहेगा बट ये उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वाटरमार्क पे करोगे तो विदाउट वाटरमार्क यू कैन डाउनलोड। It means we should use the images which don't have any watermark, Yes. that are designed for the free versions. Yes. So they If will you not contain any watermark. Right. Thank you, ma'am. Next question is there any copyright issues for using the Canva to photos or other content anywhere else? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रो वर्जन है ना, उसमें ही आपको पे करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली, और बाकी जो डिजाइन है सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको इजीली यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता इसमें। Okay, thank you, ma'am. Can we download the reference pictures? One more is there. Can we download the reference pictures that are available in Canva for use in other softwares as well? फ्री पिक्चर्स वी कैन नॉट डाउनलोड ओवर हियर, वी कैन यूज ओनली अपलोड करना है, आप अपलोड कर सकते हो, बट जो इमेजेस ऑलरेडी यहाँ पे हैं उसका एक ट्रिक है, यू कैन यूज पेज ऐड किया, इस पेज में आपने कोई इमेज ली है, आपको कोई फोटोज चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पिक को उठा लेती हूँ, ये वाली पिक मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसको मैंने सेट एज अ बैकग्राउंड कर लेती हूँ, इसको रिप्लेस द बैकग्राउंड, ये पूरी बैकग्राउंड में सेट होगी, इसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ एज अ जेपीजी, मतलब डायरेक्ट इमेज नहीं उठा सकते, बट उस डिजाइन को एज अ जेपीजी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट, ये पेड थी इस वजह से। Thank you so much, ma'am. ठीक, ओके मैम। Thank you for your interesting and creative lecture. You have elaborated various features of Canva tool in detail. I hope all the participants must benefited from this wonderful lecture and able to design their own customized graphic designs.